अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मामा शजाज। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद ड्रामा चैट में सदफ हैदर। सदफ इज बैक फ्रॉम वेकेशन। सदफ, आई मिस्ड यू। हाउ आर यू? I missed you all too, especially Mavish. अरे I'm सदफ, why, mm, first ask me why did you miss me, Mavish? What happened? why do you miss me, Well, of Mavish? course, What because I love you, that's like a given. But like, मेरी जिंदगी है तू is something. We'll start with this because like every time I watched it, I was like, oh, I need to talk to Sadaf about this. We need to talk about this. We need to address this huge harassing elephant in the room. Actually, it's not even an elephant in the room. It's actually just a fact of the show. And so you've caught up with it. You're yeah, yeah, I have. so You let's. might be shocked at my opinion. So I'll be shocked at your opinion. Say it ain't so. Okay, Sadaf, your take on Meri Zindagi Hai Tu. okay, so I saw the first two episodes and they Hmm. kind of blew my mind because you know what? I may be educated, conservative, liberal, whatever side of the thing, but I think we can all agree that burning someone's car is wrong, right? Let's And start there. yeah, let's just say there's a baseline of normal behavior. Hmm. It's not even ethical, just normal behavior. आपको किस चीज का गुस्सा लगा, आपको ये हुआ, दिस इज नॉट गुंडागर्दी, इट्स क्रिमिनल। एक होते हैं ना लड़के जो दे लाइक टू थ्रेटन पीपल, ऊपर से ये लड़का वो भी है। हैव यू नोटिस्ड ही गॉट आउट ऑफ द कार, ही थ्रेटन्ड हर ब्रदर, पंचे मारी उसको, बदतमीजियां, not just with he did with the girl, but he's a violent, angry person who feels there's no consequences for him. और Yep. एकदम एपिसोड 3 में ना वो बन जाता है किंडरगार्टनर। अड्डा Hmm. ऐसे होता है, मुझे प्यार की जरूरत है, Hmm. Hmm. right? Hmm. And Hmm. I should hate it. I should hate it, but you know the next sentence that's coming, right? It's Yeah. remarkably well made. Yeah, yeah, This, yeah. It is. yeah, It is. I It mean, is. Musaddiq Malik, and this is why it's triple dangerous, right? Hmm. See, because Kasi Teri Khud Garzi was a puppet show. I know it got a huge rating or whatever. It was absolutely laughable and terrible. And Hmm. you could say, Acha chodo, you know, the massive, it's a massy thing, and they've lost their minds and they're just trying to get as many ratings as they want. And chalo koi baat nahi, kam as kam nobody is going to take this crap seriously. Hmm. But इतने अच्छे तरीके से मुसद्दक मलिक ने बनाया है कि यू ऑलमोस्ट बिलीव, हाँ हाँ ये तो बिल्कुल Isn't आमिर। isn't isn't that more dangerous? एग्जैक्टली, दिस Yeah. ट्रिपल, and that's what's worrying about this whole show. Okay, there requires a certain level of anger and viciousness to Hmm. burn someone's car. Yeah. Absolute, Yeah. which because it's not a normal हरकत। आप ये नहीं देखते, oh ho, we had a breakup, so I went and burnt her car. See, Hmm. and I blame the writer Radhen Shah, Hmm. because what happens is a lot of these writers, including sometimes Anjabil, what they do is, I'm not sure whether they're doing it. I take that back. Hmm. पता नहीं है वो खुद कर रहे हैं या जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स कुछ ऐड कर रहे हैं जिसमें उन्हें ना वो ड्रामेटिक पंच नहीं होता, वो Hmm. डोपामिन हाई कि ये उसने कर दिया, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द रैशनल माइंड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम दैट सिचुएशन। और Hmm. उनको तो थिंग्स मिल गई हैं, वो अब वो चुन्ना काका बन गया, अपनी दादी अम्मा को जगह मासूम जगह फरिश्ता। गोद में उठाएंगे। मासूम हाँ, फरिश्ता बन गया वो। right. But you see, it takes a lot of guts to do that kind of behavior, and they really haven't explained how he climbed down. और आप इस टाइप के बंदे को सूटी से मारे या स्विच से, I mean, he's threatened her brother several times in a very Hmm. angry manner. At the police station, he threatens the police guy in an angry manner. This is not a And normal, threatens that doctor, वो रिश्ते वाला जो right, डॉक्टर है, फवाद right. खान जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बड़े अच्छा एक्टर हैं वो। I mean, I've read your tweets. What are your feelings now? Oh, it just keeps getting it keeps getting worse for me, Sadaf. It just the each show, each episode makes me want to burn something down because, like, literally take a अफेक्टेड हो गई हैं वो आप उससे ना हाँ, वो। मैं कहती हूँ यार, आई फॉर एन आई कर दूं मैं यहाँ पे। भाई देखें इसमें कुछ लोगों ने मैंने ट्वीट्स देखी, मुसद्दिक मलिक ने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ शेयर किया
और कुछ लोगों ने मतलब एडिट्स बनाए, लोग मेरे ऑब्वियसली जैसे मेंशंस में आके लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, रोना गाना शुरू कर देते हैं, वो भी उन्होंने हम्म। किया। अब इसमें क्या मसला है? मैं ही बता रही हूँ कि एक तो आपने वो वाली बात की कि दैट्स इवन मोर डेंजरस, कि इट्स अ वेल प्लॉटेड आउट स्टोरी। Even more dangerous is that Bilal and Hania have a modicum of chemistry in this show. Like there's in the last episode, you have this. Amazing, but you can हाँ, see not amazing. हाँ, but you can like sense, you can start thinking कि अच्छा कर दो ना माफ, क्या हो गया, गाड़ी तो चलाई थी उसने। uh, अच्छा। you have the idiot side characters who should know better. हम्म। क्या हुआ, सुथरा हुआ होता है तो तो द कितना बहन, दैट अच्छा बहन, है। oh my god। By the way, Behan and Behnoi are actually a more interesting couple. They seem very stable, very kind of like they were more interesting than these two. I'm sorry. No, but like what sister advised her sister to go for the harasser, stalker, car burning, pyrotechnic The weirdo? one that the Radhen Shah writes, not a normal sister, but what a man writes. So कोई बात my, नहीं। हाँ, हम्म, तो मेरा पूरा जो उसमें मैं आई वाज ट्राइंग टू लाइक थिंक ऑफ फिगरिंग आउट लाइक कि ये क्या, क्या इज देयर सम, वो कहते हैं ना कि कोई इस एप्पल के एंड में कहीं जाके कोई जायका है, कोई सही चीज है इसमें, कोई बात करने वाली, समझने वाली, मैं कुछ इस ट्रेन रेक से कुछ पॉजिटिविटी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी डेस्परेट अटेम्प्ट में बैठी थी, बिकॉज आई लव बिलाल, लाइक आई थिंक ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, एंड he's a fabulous he's a actor. fabulous actor, He's and so Hania, good eh, looking. Oh my God. so good looking, and Hania so And this is pretty. the problem, right? Because इतना हसीन बंदा आपके सामने अच्छा, वो खड़ा एक हुआ, शरीफ भी you बच्चा know, लगता है मुझे बिलाल। right? हाँ, मैंने बिलाल का जब भी इंटरव्यू गंदा नहीं किया है, लगता। हाँ, हाँ, वो बहुत एक तमीजदार बच्चा है वो, माशाल्लाह, बहुत अल्लाह उसको तरक्की दे। लेकिन भाईजान, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम किस किस्म की स्क्रिप्ट साइन कर रहे हो हैं? अच्छा, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप उस सीन में देखते हैं, जब वो हॉस्पिटल में बैठी होती है, और जब वो उसे रेस्टोरेंट में भी, अच्छा, वो रेस्टोरेंट में भी चली गई है उनके साथ, मतलब बैठ गई गाड़ी में जाके फुल टाइम ऑलमोस्ट नियर। वो डायलॉग नहीं है ड्रामा वो नॉवेल्स में, somehow she felt safe enough with him. Oh God, like the irony. So when that dialogue and that conversation is happening, she's like calmly explaining her point of view, and then she's talking about, oh, I don't think this is okay. And I'm like, okay, is Radhen Shah trying to give a picture of reformance to these boys who do this? बट आई एम लाइक, कितने लोगों को ये मैसेज समझ में आएगा ब्रो? जो जो बदतमीज क्रिमिनल माइंडेड लोग जो ये शो देख रहे हैं, वो तो यही देख रहे हैं कि मैं एक लड़की के पीछे पड़ूंगा तो कहीं ना कहीं तो उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी ना कभी जाग जाएगी, ऐसे नहीं तो वैसे। तो वो उस, तो वो ये इतना Like, इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर है, कामयार का इतना yeah, इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर है। एक तरफ आप दिखा रहे हैं, देखें, साइकोलॉजी के हवाले से मैं बता देती हूँ, साइकोलॉजी में एक इंसान जिसको लाइफ और प्रॉपर्टी और बाउंड्रीज की अकल नहीं है, यानी अकल है yes. लेकिन वो फ्लाउट करता है, जान के चले अकल भी है, ठीक है ना, अकल है, उसे पता है कि मैं किसी की गाड़ी नहीं चला सकता, मगर वो जाके चलाता है। उसे पता है कि मैं एक लड़की को हरासा नहीं कर सकता, लेकिन वो हरासा करता है। उसे पता है कि एक लड़की के घर के बाहर खड़े होके उसको यूं मुनी आइज बनाना ठीक नहीं है, लेकिन वो करता है। इस हवाले से, इस सिंपल बात से, लॉजिक से साबित ये होता है कि ये इंसान एक क्रिमिनल है। इस इंसान के अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज है। आपको पता है, 18 साल से कम उम्र में जब बच्चों को डायग्नोस कर रहे होते हैं आप, या उनकी पर्सनैलिटी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर के लिए, कि आगे जाके क्रिमिनल बनेगा या नहीं बनेगा, तो यही सब चीजें चेक कर रहे होते हैं। क्या उसको लाइफ की वैल्यू का पता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू का पता है, अदर पीपल की बाउंड्रीज की वैल्यू पता है, नहीं पता है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल टेंडेंसीज है, उसको देखना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। अम्मा अब्बा इतने प्रिविलेज खुला छोड़ा हुआ है उसको, खुले सांड की तरह माशरे के ऊपर, और फिर उसके बाद वो जा जाके लड़कियों को पहले तो बदतमीजियां करता है, किसी से ब्रेकअप कर रहा है, किसी से कुछ कर रहा है, अब उनको जिंदगी में आयरा मिल गई, अच्छा, पकड़ पकड़ के सोटियों से मार रही है वो उसको, है अस्पताल के अंदर, और वो मार खा रहा है। अब अच्छे अनरियलिस्टिक। भले शरीफ आदमी को ये करके दिखाएं, जी, ओ गुड पॉइंट, right? गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, चलो आई, वो तो गुंडा के माफक है ना, राइट? हाँ हाँ। बदतमीज है, बिगड़ा हुआ, गाड़ी से निकला। आई मीन द फर्स्ट सीन इट मेक्स फॉर सो मच इम्पैक्ट, एंड दिस इज व्हाट इज सो रॉन्ग विद आवर प्रोड्यूसर्स एंड आई थिंक एंड आवर डायरेक्टर, कि एक इम्पैक्ट के लिए ना वो सारी स्टोरी का कचरा बना देते हैं कि यार जबरदस्त सीन होगा, कैन सी देम ऑल सिटिंग, पहले सिगरेट के पैकेट के पीछे लिखा होगा, हम्म। अच्छा ऐसे करते हैं।
राइट, हम्म ओ सर जी ऐसे करना, गाड़ी को आग लगा देते हैं। राइट राइट हम्म राइट, सब तालियां बजाते हैं। ओ ग्रेट आइडिया सर, ग्रेट आइडिया। अच्छा, फिर वो गाड़ी कहीं से खरीदते हैं, वो जो बजट खराब होती है, उसको आग लगाते हैं या सीजीआई करते हैं। फिर वो ना, मैं लुक, आई ब्लेम राधेन शाह फॉर अ लॉट। इफ ही हैज रिटन दिस सीन, he deserves the complaints. लेकिन I sometimes get the feeling that our producers and our actors and all of these people I'm not make, absolving anybody, and I'm not saying that this is a singular yeah, problem. I'm saying the writer has a problem, the yeah, producer has a problem, the channel, the everybody who is okay with right. producing this needs to take a good long look at yourself. Okay, Because can I ask you a quick question there, right? And it will stop everything and prove everything. What if instead of burning her car, he'd thrown some, say, red paint across her new car? You कोई know, delinquency or वाली हरकत उसने की or होती है। he just slashed her tires the way she had done to his tires, हम्म right? And then but but afterwards, but that's the thing, right? that Like, has given you a better feeling for him कि चलो इतनी भी कोई बात नहीं मैं है, यही you आपसे know. कह रही हूँ ना कि ये आप इसको किस हद तक लेके जाते हैं, डैमेजिंग Hmm. समबडीज प्रॉपर्टी को आप किस हद तक लेके जाते हैं, वही आपकी वाली Right. बात है कि अरे ऐसा दिखाते हैं, ऑडियंस पागल हो जाएगी, हम ये दिखाते हैं, वो आके उसको थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। आप राइटर के दिमाग में क्या ये चीज नहीं आ रही थी कि जिस बंदे ने किसी बंदे को अनप्रोवोक्ड उठा के चमाटे घूंसे मारने शुरू कर दिए, वो नॉर्मल Right. कैसे हो सकता है? और मैं उसके लिए कैसे रूट कर सकती हूँ, और मैं उसकी लव स्टोरी को भी कैसे वो कर सकती हूँ कि मैं Patronizing उसकी attitude towards her brother. It's really एवरीवन एवरीवन yeah. इंक्लूडिंग हर ऑल्सो एट सम पॉइंट इन टाइम। अब तो वो भीगी बिल्ली बन गया है अचानक से। देखिए, हाँ. मेरा यही प्रॉब्लम है, आप इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर जब दिखाते हैं ना, तो जब आप अचानक से किसी कैरेक्टर को स्विच कर देते हैं, जो कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, आई थिंक बहुत पहले हमने एक बात, जब हम हम्म. जफा डिस्कस कर रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात कर रहे थे, मैंने ये कहा था कि जब आप एक अच्छे किरदार को एक बुरी हरकत करते हुए दिखाते हैं, तो आप ऑडियंस को गलत मैसेज दे रहे होते हैं। यानी ये कि एक बाप बहुत अच्छा है, बाप बहुत प्यार करता है बेटी से, बेटी का ख्याल रखता है, बेटी की राइट्स के बारे में फिक्र करता है, लेकिन बेटी कुछ गलत होती है ना, चटाक थप्पड़ मार देता है उसको, बेटी को। ये नहीं करते ऐसे बच्चे बाप, ऐसे नहीं करते बिहेव अपनी बेटियों के साथ। जो बेटियों की इज्जत करते हैं वो बेटियों पे हाथ नहीं उठाते। सिमिलरली द रिवर्स गोज ट्रू हियर। जो लड़का लड़की को हरास कर रहा है, लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, लड़की के पीछे उसको आग लगा रहा है, चीजें खराब कर रहा है, लोगों को हर्ट कर रहा है, अपनी फैमिली से बदतमीजी कर रहा है, उसने अपने बाप के आगे कहा था मामूली लड़की नहीं है वो ये सब हरकतें कर रहा है, The तो way वो he spoke, it was violent and वायलेंट aggressive. एंड ये अग्रेसिव। यही वो आके कहता नहीं, in a restrained way, नो, ही कुड नहीं. हैव कम एंड सेड के आई डोंट वांट टू Yes. टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, खत्म, खलास, लीव द हाउस। There was an easiest solution नहीं in नहीं which नहीं, he could have एवरीथिंग done हैज टू बी टेकन अप लाइक 100 notches फॉर द वो ये इम्पैक्ट। डोपामाइन हिट में चाहिए ना. हाँ, डोपामिन हिट चाहिए। अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा कैरेक्टर अगर ऐसा बिहेव कर रहा है, और फिर अचानक से आप एक एक कैरेक्टर, एड्रेनलिन. हाँ, एड्रेनलिन. एड्रेनलिन, डोपामिन, जो भी आप कहना चाहें, तो वो उस पॉइंट पे आगे जब वो अपनी लड़की जैसे मोहब्बत करता है, उसके सामने बैठा हुआ है, और लड़की उसको या तो तमाचे मार रही है, या सोटियों से मार रही है, या उसको बोल रही है कि लुक आई डोंट लाइक यू, ही इज ईदर गोइंग टू किल हर और हिट हर और मेम हर और सीरियसली इंजर हर और किडनैप हर एंड हर्ट हर। चूज योर पिक, ओके, लाइक टेक योर पिक, जो भी आपको सही लग रहा है कि वो करेगा, लेकिन वो यही करेगा। वो आगे से ये नहीं कहेगा अच्छा मैं लिस्ट बनाता हूँ, मुझे बताओ ना मैं क्या चेंज करूँ अपने बारे में। यार, अच्छे नॉर्मल मर्द नहीं चेंज करते, नॉर्मल मर्द नहीं चेंज कर रहे अपने आप को। यहाँ पे दाल से चावल पे नहीं आ रहे, चावल से बिरयानी पे नहीं जा रहे, पुलाव we से बिरयानी पे we नहीं आ all रहे। have these bitter, मैं पालक बना दूं, हाँ। नहीं. मैं मैं फलाम बना दूं, नहीं, ये तो नहीं. मैं खाता नहीं, ये तो मुझे अच्छा नहीं ये तो लगता, मैं ये खाता जल नहीं है, गया है। आपको तो पता है मैं चिकन नहीं खाता. हाँ, राइट, you're like how many years has this been and you are not touching chicken. लेकिन ये साहब जो है ना, वो रोमांस के चक्कर में वन डे दुनिया ओनली, one day कर. only. All it takes is her to smile and like, and I राइट. found that scene so terrible when she's sitting in चलो, front of the इट्स dadi. अ रोमांस, इट्स अ रोमांस. काय का यू कैन रोमांस है प्रैक्टिस. भाई, क्या गलत है ना, गलत अच्छा, रोमांस दिखा रहे हैं। devil's advocate here. ओके, What if it had been in a movie? Would you have आई put up वुड with नॉट it? नो। I have a feeling. No, no, we would have had, because there were fewer scenes, right? And you do need dramatic punches within a movie, हम्म right? So what that might have worked in a movie, जिसमें second half में वो जैसे आप दिखा रहे हैं ना, नहीं वो एक शरीफ आदमी बन रहा है. नहीं, कबीर Don't सिंह think में भी so? ओके नहीं था,
और ओके। अच्छा, जो फिल्मों में, जिन फिल्मों में जनरली आपने थोड़ा बहुत इसको एक्सेप्ट किया ना सदाब, उसमें वो नॉच यहाँ तक नहीं गया है। राइट। वो ग्राफ आप कैरेक्टर का उधर तक नहीं लेके गए जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप कैरेक्टर को ले गए अपनी फर्स्ट एपिसोड में। दिस इज द प्रॉब्लम क्योंकि दैट वी। रेटिंग्स बाबा, रेटिंग्स। तो हाँ ठीक है, जो भी रीजन है, आपके दिमाग में कैरेक्टर था, आपको रेटिंग चाहिए थी, आपको रेटिंग मिल भी गई, लेकिन आई एम स्टिल सेइंग कि दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज अच्छा, वो सो रॉन्ग। गाड़ी वाला सीन जो है ना, वो क्यों इतना डिस्टर्बिंग मेरे लिए है, इज द वे ही, बिलाल अब्बास को क्रेडिट जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यार एक्टिंग नहीं आ रही, दानिश नहीं लग रहा, विच इज, आई एम सॉरी, मैं, मेरी अपॉलॉजी सबको। दानिश बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनके जो साइकोपैथिक रोल्स वो आजकल कर रहे हैं, उनका मुकाबला बिलाल करे, आई थिंक बिलाल इज डूइंग द राइट थिंग, राइट। देयर इज एब्सोल्युटली नहीं, नो। बिलाल एक अलग एक्टर है, बिलाल एक बिल्कुल अलग तरीके का एक्टर है। बिलाल का अप्रोच टू एक्टिंग भी मुझे फर्क लगती है दानिश He is की। more restrained in everything, you Not know. just restrained, Sadaf. I think he's generally more natural, and Mm, Danish is more dramatic in every way. Like जब बिलाल कोई नॉर्मल जुमला भी बोल रहा होता है या हाई पावर्ड जुमला भी बोल रहा होता है, एक नेचुरलिज्म के तौर पे बोलता है, जबकि दानिश उसको पूरा ड्रामेटिक बनाता है। और दोनों की मुझे अच्छे लगते हैं, दोनों के डायलॉग डिलीवरीज। मैं mm. उनके कैरेक्टर से इख्तलाफ करती हूँ, बट मुझे लगता है दोनों बहुत फैबुलस एक्टर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कंपैरिजन बनता है। Danish लेकिन is alpha male, right? लेकिन Um, सदा बिलाल जो है वो फुल दानिश की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, जो मुझे अब इश्क अल्लाह मुश्क ना के बाद करे, अब ये मुझे लग it's रहा है। नहीं, very मैं risky. बिल्कुल, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस ये बात कहते हुए। मेरे बड़े फेवरेट्स में से हैं दानिश, मगर दानिश, सॉरी बिलाल, लेकिन बिलाल अगर दानिश बनना चाहते हैं, साइको Mhm. कैरेक्टर प्ले करते रहना चाहते हैं, तो दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। आई ऐसे, you know what, एक्सपेक्ट you kind of pity actors, क्योंकि ऑडियंस उनका इतना बेहतरीन है कि वो रेटिंग्स ही इस टाइप की चीजों को मिल रही हैं। मैं नहीं मानती, मैं ये बात भी नहीं मानती, ये मिथ है। और ये आपकी चॉइस है। मुझे लगता है अब जो जिस तरह की कहानियां और जिस तरह की रेटिंग सिस्टम बन गया है, हम जमा तकसीम पे आ जाते हैं और जिनकी शादी उनकी शादी पे भी आ जाते हैं। जिस तरह का रेटिंग सिस्टम बन गया है, हर तरह की ऑडियंस मौजूद है सदफ, जो जो अच्छे ड्रामे भी हाई रेटिंग्स लेकर आ रहे हैं। तो आई मीन, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू मेरी जिंदगी टू Yeah, विद? sorry, I keep interrupting you and apologize. वो ना मुझे with मेरी जिंदगी too, we are coming into the phase with which ना अब reform होने की कोशिश वो हाँ लड़का हाँ कर। हाँ हाँ। Let's be fair. Let's be fair, because मैंने I think I said this to you, or maybe I tweeted it, I can't remember ना, इतनी हमारी बातें होती हैं ना, I was like, look, you cannot believe कि someone is changing unless you see some, के जैसे वो concrete steps लेते हैं, कि हम्म। जिससे वो अपनी एंगर मैनेजमेंट अपनी कंट्रोल करते हैं, नॉट फॉर अ गर्ल, बट टू हम्म। अ बेटर फॉर ह्यूमन। देयर ओन सेल्फ, हाँ। ये जो दानिश के वो डायलॉग होते हैं ना कि इसकी जात क्या है, इसका फलान क्या है, तो वह कहते हैं मैं हूँ इसकी जात, मैं हूँ इसका बैकग्राउंड, मैं हूँ, राइट, हैज नेवर बीन मैरिड बिफोर, बिकॉज मैरिड लाइफ इज सच, अप एंड डाउन, 2 मिनट के लिए आप प्यार है आपको होता है, दूसरे मिनट तीसरे मिनट में आपको नफरत उस बंदे से आ रही होती है। हम्म। एंड men, because married life is not an easy thing, and हम्म। the idea that everything depends on one person's love rather than their respect, right, is scary. And now those kinds of marriages जो सिर्फ passion based होते हैं, they're tough to last. I don't think they last that long. So whereas those based on mutual respect and kind of affection, I don't know, I have a feeling that they last longer. I आई could be थिंक wrong. पैशन, हम जब दानिश तैमूर जैसे लोग कहानियां सुना रहे होते हैं या उनकी हम कहानियां देख रहे होते हैं, तो वो पैशनेट कहानियां सुना रहे थे। पैशन में रिस्पेक्ट जरा कम होती है, लेकिन Hmm. पैशन शॉर्ट लिव्ड होता है, पैशन इतना लॉन्ग टर्म चीज नहीं होती। बिकॉज पैशन का ताल्लुक आपके हार्मोन से होता है, आपकी एज से होता है, Hmm. एक्सपीरियंस से होता है। हाई हार्मोन लो एक्सपीरियंस लीड्स टू अ लॉट ऑफ पैशनेट, यू नो, काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। लेकिन जब आप थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा आप उस हार्मोनल फेज से बाहर निकल आते हैं, तो आपकी जो पैशन जो है वो लव की तरफ आप ढूंढते हैं। और लव के लिए फर्स्ट सीढ़ी जो होती है वो रिस्पेक्ट होती है। अगर कोई इंसान Hmm. मेरी इज्जत नहीं कर सकता, तो मैं उसकी मोहब्बत पे यकीन नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि वो मोहब्बत है। जैसे किसी ने ट्विटर पे मुझे कहा कि जी, वो मोहब्बत कर रहा है इसलिए अपने आप को चेंज करना चाहता है। मैंने कहा किसी को स्टॉक करना, हरास करना मोहब्बत होती ही नहीं है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वाकई मोहब्बत करते हैं, उसे और हासिल करना मैं एक चाहता है बात ऐसे। करना चाहती हूँ जिसके बाद मैं खत्म करूंगी हम्म। बहस, और क्योंकि हमें आगे ड्रामे पे जाना है सिर्फ,
एक औरत के लिए ये शदीद तकलीफ दे चीज होती है कि, और एम्बेरसिंग चीज होती है कि कोई आके उसको स्टॉक कर रहा है। जैसे बड़ी स्टूपिड सी बात है, मैं स्कूल में थी और मेरे पास आई कंसिडर्ड माई सेल्फ के, ओ या मतलब हमने भी ड्रामा फिल्मों में देखा होता है ना कि कोई आपको कार्ड छोड़ के जाएगा तो बड़ा शर्म आएगी, अल्लाह ये कार्ड छोड़ के चला गया। There was a dude, he was leaving cards on my desk, and I didn't know who that person was. And I felt humiliated. I did not feel good. I did not. I mean, I was a kid. I was in metric 9th 10th की मैं बच्ची थी, और मुझे उस वक्त मैं देख रही थी, और and everyone was like sniggering and laughing, and I wish I could say I felt flattered, दिल and करता है खुदकशी कर लें उस वक्त मुझे ना। इतनी एम्बैरेसमेंट हुई थी, मुझे इतनी शर्म आई थी, और मैंने वो जल्दी से कार्ड मतलब छुपाए। और ये पुराने जमाने वाली बात है, मैं बहुत पुरानी हूँ, 25 साल 30 साल पुरानी बात है। तो मैं जैसे अब कार्ड्स हैं, किसी ने आपको एसएमएस तो नहीं भेजा, किसी ने आपको व्हाट्सएप तो नहीं किया, हम्म, पर वो कार्ड है, देर फिजिकल, देर इन फ्रंट ऑफ यू एंड योर एंटायर क्लास इज वॉचिंग somebody के वो ये दिल बना हुआ है, फूल बने हुए, एंड you're लाइक कोई कोई होल खुले और मैं उसके अंदर गिर जाऊं, मर जाऊं। And I'm nothing, it has nothing to do with like, oh, सब honor culture. I am a वो very self क्यूट है ये नहीं है, नहीं, नहीं, कैसा है। और बिल्कुल नहीं। मेरी कॉन्फिडेंस, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। इट्स एम्बेरसिंग, इट्स ह्यूमिलिएटिंग। अब ये एक छोटी सी चीज है, एंड आई एम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। आप एक मिनट के लिए उस लड़की के बारे में सोच के देखें, जो चले आयरा जैसी भी नहीं है, वो घर में उसके माँ बाप उसको स्कूल कॉलेज भेजते हैं, वो पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो नहीं चाहते कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से ज्यादा बात करें, लेकिन लड़कियों को एग्जिस्ट करना पड़ता है उस स्पेक्ट्रम पे, और उन 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 इकोसिस्टम्स में जहाँ वो लड़कों से उनको कॉन्वर्जेशंस करनी पड़ती हैं। माँ बाप ये ड्रामा देख रहे हैं, और माँ बाप कहते हैं हाँ जी, ये तो यही होता है लड़कियों के साथ। वो लड़कियां बाहर जाती हैं, उनको ऐसे लड़के मिल जाते हैं, उसके बाद वो उनको हरासा करते हैं। I mean, this is so dangerous. This is such a There are dangerous so game they're many playing. ways he could win over her love and affection by being kind, by apologizing. देखो, I'll make it up to you. No, मुझे but ये that's a different story. What you're saying, Sadaf, is a different story. What coulda, shoulda, woulda वाले पे तो मैं, अगर ऐसा कुछ दिखाना होता तो मैं ये दिखाती कि एक बिगड़े बाप की औलाद है, जो स्पॉइल्ड है, जिसको तमीज नहीं है बात करने की, वो एक लड़की he's से। more than that. He's more than that. बट I मैं वही have कह रही हूँ ना कि हम किस कंडीशन में इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम इस तरह एक्सेप्ट करते हैं कि अगर वो बिगड़े बाप की बदतमीज औलाद है, तो वो आया है, उसकी आयरा से किसी समहाउ कोई बहस कुछ हुआ है, एंड देन दैट लीड्स एंड शी सेज समथिंग टू हिम, और सम occurrence happens which makes him think about his decisions, about his life, and then he connects with her in some way। बट ये कहानी तो बनानी नहीं है ना हमने, तो गालियां दिलानी है। Bollywood does a better job of this, right? या Because if इट I हैज remember, इम्प्रूव्ड, बॉलीवुड से ही निकला है ये ट्रोप, गंदा yeah, ट्रोप, I और फिर know बट that. देव इवॉल्व्ड, हम भी हैं। I have seen dramas, पता नहीं पाकिस्तानी थे या Bollywood movie, in which the girls said, and no, hang on a minute, वो जो कौन सी थी जिसमें वो तुम हो क्या, right? I was fully expecting her to say, to give him a lowdown of exactly how nothing is. Right? हम्म। She's a doctor. She's worked her way hard up. या She's got a good family. Her father has sacrificed for them to have this life. She's like, who are you? Tum ho kya? Karte kya ho? Right? Instead of तौबा। that, we got like, I don't like you to do this. I don't like you to do that. आई See, हेट I दैट was सीन वेयर शी इज so much. एक्सप्लेनिंग इट टू द Yeah. दादी के, देखें ये जरा मुझे मुझे तंग करता है बहुत ये, हाँ हाँ, ऐसे जो मेरी कैंडी चुरा के भाग गया। Right. क्रिमिनल है भाई, वो क्रिमिनल है। Like if एनीवे, it was me, nobody would have gone to that hospital room at नोप, all. नोप, नोप, सॉरी, सॉरी, आई And last word, last word, या right, is that I really want to appreciate all the other actors and Musaddiq Malik. He shouldn't have chosen this because I think it's completely wrong. But all the acting, everything else is working real well, and this is the real दिस इज danger. द It's so प्रॉब्लम। well इट्स अ made. गुड शो, इट्स अ Hmm? वेल मेड शो, इट्स अ वेल मेड, again, I'll take my words back. It's not a good show. It's a good product in terms of Right, how well it's packaged. But वो बकौल आपके जहर का प्याला। अब ये बात right, होती है कि डम्प शो होता है तो वो जहर का प्याला जंग लगे बर्तन में आपको देते हैं। अब ये right. जहर का प्याला आपको डिजाइनर लुई विटॉन वो कप Yeah. में दिया जा रहा है। तो अब आप और कहोगे उसमें यार, शहद घोल घोल के डाली है। गोल्ड के गोल्ड प्लेटेड लुई विटॉन बोल है ये, ठीक है ना। तो अफसोस होता है इस बात पे, इसी पे अफसोस है एक्चुअली। डम ड्रामा होता ना तो हम कहते भाई कार्टून शो है, छोड़ ही दो, कौन सीरियस हाँ, लेगा। जैसे जैसे तेरी खुदगर्जी वो में उसको सीरियस लेने के लिए जरूरत ही नहीं थी। राइट, इट था वाज मुझे, सो तब भी स्टूपिड। वायल लगता था वो। खैर,
आ जाते हैं जी। अब एक एक बात हमने शुरू में की थी कि जी ऑडियंस ही ऐसी है, ऑडियंस ये देखना चाहती है, तो अब आ जाते हैं जमा तकसीम पे, और जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं, जो बहुत अच्छा ड्रामा बहुत चल रहा है, बहुत लोग इसके ऊपर बात करें। वही मैं जो छोटी सी बच्ची जिसको उर्दू पढ़ाती हूँ, आज उसने मुझे बताया कि मैं जमा तकसीम देखती हूँ, मैं दोनों मुझे बड़ा मजा आता है जब वो दोनों आंटियां एक दूसरे से लड़ी तो वो देखें आप। And हाँ, मतलब द क्लैश ऑफ द टाइटंस। right. So Jama Taksim has been getting great ratings. Jama Taksim has been a great talking point. I think it's one of the best shows on TV right now. And then we see it appealing to an audience, instigating conversations, positive conversations, healthy debates. तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस जो है वो वही वाली है जो मेरी जिंदगी है तो मैं टॉक्सिक मेल हीरो स्टार्टर पैक को देख के एंजॉय करेंगी। मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनको अगर आप इंटेलिजेंट प्रोडक्ट इंटेलिजेंट तरीके से दिखाएंगे तो वो देखेंगे। हाँ, आइडियोलॉजिकली उनके कहीं व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। जब हम पामाली की बात करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी आऊंगी, उस पर भी मैंने, जब मैं रिव्यूज पढ़ती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं दीवार से सर मार लूं अपना। लेकिन जमा तकसीम के ऊपर बात करें तो जमा तकसीम एक ऐसा ड्रामा है जिसने वो स्टार्ट की है कॉन्वर्जेशंस बहुत सारी, जो मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ टू सरवत एंड अली हसन एंड द एंटायर कास्ट। मुझे कंफ्यूजन है दो तरफ, अगर आपने देखा, आई एम नॉट श्योर, एंड गाइस लेट अस नो इन द कमेंट्स कि निगहत जो है वो बेटे को वो कर रही है, थप्पड़ थप्पड़ मार देती है रिसेंट एपिसोड में ना, कि तुमने तुमने ये हरकत की है। डिडंट शी ऑलरेडी नो? You see, this is the confusion. I agree with you there because मुझे ये लगता था कि I think she's one of those mothers कि वो ना shall I put it psychological terms आपके पास होंगे। बच्चे जो है ना वो उनको ना नहीं देखती एज इंडिविजुअल्स, हम्म। उनको देखती है कि एक्सटेंशंस ऑफ अवरसेल्व्स। हाँ, साये है मेरे, हम्म। बस। तो उनको होल ह्यूमन बीइंग की तरह इट्स वेरी इजी फॉर मदर्स टू डू दैट। नार्सिसिस्ट के लिए तो और ज्यादा। देखो बिल्कुल। इतनी बड़ी दो बातें हो गई हैं, बेटा तुम्हारा सेक्सुअली अब्यूज्ड हुआ है, उसने हम्म। क्या किया, और अभी भी तुम्हारी सियासतें नहीं खत्म हुई। निकिता जी क्या उस वो दूसरी का नाम ना जो उसकी राजदा। नंद है, हाँ। अ, अपनी नंद नुजहत। को ना, नुजहत। आई नुसरत। थिंक, हाँ। नुसरत बाजी आपने बस एक मेरा काम करना है, मुझे रिश्ता That scene उससे was करना है। appalling. और मेरी बेटी के लिए जो खानदान का सबसे शानदार मर्द है ना, जैसे हम्म। खानदान का पढ़ा लिखा सुलझा हुआ ये वो, यू नो द वन विद द ब्लॉन्ड हेयर राइट। तो हम्म। वो आपने ना मेरे हवाले कर देना है। और जो बेचारी वो जो लड़की है ना, उसको मेरे कचरे जैसे पीस ऑफ डर्ट मेरा बेटा उसके साथ रखना है, ताकि मैं सारी उम्र उसको ताने देती रहूं ना। तुम दोनों हम्म। को, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन फैमिलीज। क्योंकि इतनी उसकी चालाकियां नहीं उस औरत की खत्म हुई, वो हम्म। अब भी आजिज नहीं हुई ना। उसके हम्म। ज़हन में ये है कि मैं माफी मांगूंगी, और ये बुट जो दूसरा टब्बर है, बिकॉज दे आर बुट्स राइट। हम्म। तो वो सब कहेंगे हाँ हाँ भाभी। और खासकर जो वो बड़ी जेठानी है या हम्म। देवरानी, वो तो फौरन माफ कर देगी। और तो अम्मा अब्बा तो साथ देंगे ही। आई लव द कंसिस्टेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स। उसे क्या? पता है, ये नहीं उसने सोचा कि भाई मैं हमने इतना बड़ा गुनाह किया है या मुझसे हुआ है, क्योंकि शी इग्नोर्ड द साइंस। हम्म। कितने सालों से कफारा कुछ दूं कुछ करूं उनके लिए। नो। नहीं, बट ये मुझे तो समझ में ये बात नहीं आई थी कि वो, पता नहीं ये शायद कहीं झोल है या मैंने कुछ मिस किया है, कि वो जब पहले अपने मियाँ से बात कर रही होती है, जब ये सारा किस्सा होता है, व्हेन यू नो कैस हैज कॉट द बॉय एंड एवरीथिंग, एंड द मेल्टडाउन्स एंड द आफ्टरमैथ इज हैपनिंग, सो शी टेल्स द हस्बैंड कि अगर हमारे बेटे ने कुछ किया भी है तो हम ही उसे डिफेंड करेंगे ना, आप उसके ऊपर गुस्सा क्यों करें? बिकॉज द फादर इज वेरी एंग्री at what the son has done. The father is like categorical that this is he's messed up big time. And तीन she, है फादर को। yeah, and she, whenever she talks to other people, जब वो दूसरों से बात करती है ना, तो वो कहती है कि ये सब लैला की साजिश है, ये कुछ ऐसा नहीं किया, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, मेरा ये लैला की साजिश है, ये लैला की साजिश है। लेकिन मुझे कहीं लगता था कि वो दूसरों के लिए कहती है, उसको पता है कि उसके बेटे ने किया, लेकिन अब वो जब उसको चमाट मारती है तो कहती है कि तुमने उस लड़की के बारे में नहीं सोचा, एंड दिस एंड दैट। लाइक यार, व्हाट हैपेंड? सो गाइस लेट अस नो अगर आपके कहीं आपकी कोई थ्योरी है तो। My theory is this: when you believe your own hype,
your own lies. या आप अक्सर ये होता है ना कि यू सी इट ऑन आवर स्क्रीन्स, राइट? लोग ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे थे, तो फिर उनका मैं आई लिव्ड ऑल माय लाइफ इन कनाडा, आई हम्म लिव्ड ऑल माय लाइफ इन सऊदी, आई लिव्ड ऑल माय, ये हमारे स्टार्स ये करते हैं, तो हम्म उनका एक्सेंट एकदम बदल जाता है, ब्रिटिश अमेरिकन या व्हाटएवर। हम्म एंड देन फिर बाद में पता चलता है कि ओ 2 हफ्तों के लिए गए थे छुट्टियों पे, हम्म राइट? So, you believe your own hype at some point. So, इस औरत का ये delusional पॉसिबल, level है. Yeah. possible. But what did you think of this new dostiyan which are coming up between Deepak Parwani's character and David Sheikh? I thought that was so cute. But I also feel like उनका हम्म, पर्सनल लाइफ है, आप मतलब थोड़े जो हम लोग जरा पुश करते हैं ना लोगों को, नमाज पढ़ें, ये करें, वो करें, भाई कर लेंगे, ठीक है जिसने करना, और अल्लाह की तरफ जाना या रिलीजियसली इंक्लाइंड होना, ये हर बंदे की पर्सनल जर्नी होती है, इसमें कोई किसी को कुछ कहता नहीं है. बट आई ऑल्सो, what I liked about the recent episode was also okay, they showed the continued clash between the mother and the सास, वो the sorry दूसरी जो दूसरी मदर है, टेस और लैला की मॉम जो है. और हम्म, मुझे अच्छी बात ये लगी कि ऐसे नहीं दिखा दिया कि वो जो कहते हैं ना कि अच्छा चलो 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 लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, ऐसा नहीं हुआ. वो उनकी चल रहे हैं, उनके मसले हैं, और वो इतनी आसानी से आयरन आउट नहीं होंगे. आई लाइक दैट. आई ऑल्सो लाइक के लैला इज ऑलवेज मतलब काइंड ऑफ क्लैपिंग बैक के, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये बात की तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी ये बात की है, तो इट्स ओके. आई थिंक दिस इनइक्वालिटी, आई लव दैट सरवत ऑलवेज एड्रेसेस इट, दिस इनइक्वालिटी, कि मैं लड़की की माँ हूं तो मैं लड़के का बाप हूँ. तो ये लड़के के घर वालों को जो ये ऊपर का बिला वजह का स्टेटस मिला हुआ है ना हमारे माशरे में, जो कि अल्लाह ताला ने नहीं दिया है, अल्लाह ताला ने ये स्टेटस नहीं दिया, पता नहीं कहाँ से ये किस्म की रिचुअल्स और ये स्टूपिड किस्म की रेग्रेसिव कस्टम्स हमारे यहाँ मौजूद हैं. This is like when you see the girl, हम्म okay, the neighbor जो थी, जो हाँ. याद है नेबर, और उसके बदतमीज नेबर. मेरी माँ तो नहीं, क्योंकि you see the opposite so much as well. हम्म मेरी माँ तो आएगी, उसने कहाँ कुछ किया है, हाँ. राइट? एंड द हस्बैंड मजबूर होता है कि भाई वो इसकी कोई, कैस की बहन को देख लें, कैस की right, बहन जो लाइफ गुजार रही है उसमें उसकी अम्मी अब्बू, उसकी कोई फैमिली, नजर ही नहीं आता, हाँ कोई और नहीं है, ससुराल उसराल कोई भी नहीं. वो मतलब इतने एंड द तेज है. हस्बैंड इज डन. आई हम्म, लव दैट द हस्बैंड इज लाइक चल फिर आ गया इनके घर का मसला, फिर ये हो गया. आई लव दैट गाय, ही इज सो फनी, ही इज सो फनी, cool. ही इज वेरी गुड. तो आई थिंक दैट मुझे अच्छा लगा है कि ये बार बार ये मेंशन किया जाता है, कि ये बावर कराया जाता है बार बार कि देखो ये जो फैमिली का ये बिला वजह का जो डिफरेंस हमने क्रिएट किया हुआ है, कि लड़की के माँ बाप जो है वो तो उनकी तो कोई औकात ही नहीं है, और लड़के के माँ बाप जो है वो उनको हम बिल्कुल हर वक्त सर पे बैठा के वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं. क्यों? क्यों भाई, क्या कहाँ कहाँ किस रिलीजन और किस उसमें लिखा हुआ है हमारे कि ये इस तरह होना चाहिए? तो कहीं नहीं है. लड़के के माँ बाप के पास ये तक, भाई लड़के के माँ बाप उसके लिए अहम है, हमेशा हम्म, अहम होंगे क्योंकि वो उसके माँ बाप हैं. तो लड़की की माँ बाप की भी तो मतलब उसकी जिम्मेदारी और उसकी मोहब्बत रहेगी ना. हम ये क्यों समझते हैं, जैसे ये एक जुमला हमारे यहाँ बोला जाता है ना, लड़कियों की शादी होती है, बेटा आज से यही तुम्हारे माँ बाप हैं. अल्लाह नहीं भाई, अल्लाह नहीं भाई, और यही तुम्हारा असली घर है. तो असली घर का क्या मतलब होता है? असली घर क्या होता है? असली घर वो नहीं होता जहां वो सारी जिंदगी 25 साल 30 साल रह के पली बड़ी होती है. असली घर ये आई अचानक हैव से हो टू जाता है. मीट समवन जिसने सोचा हो कि ये मेरा असली घर है, हाँ. राइट? एंड व्हेन वी कम ऑन टू दिस आई गो टू बमाल, राइट? Yeah, let's go to Mamal. I think I mean if you want to add something Maybe about I that have a episode, few things to say please go about ahead. this, हाँ, please or go if ahead. you don't mind. No, Right, no, I'm I'm done. going to say, Cass, the whole reason this drama is working and the story is going forward, कि Cass and Lala are on the same page. हम्म Very rarely this happens, right? हम्म वो ल- and you see it now illustrated कि वो लड़का गया अपनी हम्म माँ की वो गोद में उसने सर रखा है, तो हम्म आंटी जो है उन्होंने पुश 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 किया, और अब वो जो कोई जीरो इशू था उन दोनों की जिंदगियों में ना, वो हम्म. एकदम बच्चे जो है ना वो इशू बन गया है. हाँ अभी हाँ. उनकी दे आर इन द अर्ली 20s, Yeah. एंड आई डोंट Mid नो. 20s I'd say. Yeah, mid 20s. They're not old according to हम्म. the. हाँ, मैं अंडरस्टैंड करती है इफ दे वर 30 प्लस तो थोड़ा सा होता है कि भाई पता नहीं फर्टिलिटी इश्यूज ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? अभी उन्होंने सोचा नहीं है, तो बाजी जो है उनका एजेंडा शुरू हो गया है. एंड रियल रीजन दैट बाजी का एजेंडा है बिकॉज बाजी को असासे कमतरी बहुत है. वो बिल्कुल हाँ. सही उसकी माँ कहती है उनको बाजी कह के कि यू यू वांट टू यू वांट टू नॉक आउट वो जो स्पिरिट, वो जो हम्म लाइफ है मेरी बेटी में, यू वांट टू नॉक इट आउट. बट एट हम्म. द सेम टाइम वो You're so वो sensitive about this. राइट.
हम्म तो वो दे आर नॉट evil people. This is one of the smart things that सरवत नजीर हैज रिटन इज कि वो थोड़ा बहुत दे डू गेट अलोंग, वो उनकी कुकिंग की वो वीडियोस बना रही हैं, क्योंकि वो शी इज ट्राइंग टू टेल हर कि आई रिस्पेक्ट व्हाट यू आर डूइंग। जब हम्म वो चीज आ जाती है ना, तो दैट देन यू कैन हैव सम बेसिस ऑफ अ रिलेशनशिप। अच्छा, वो जो रिलीजन की बात है, राइट, आई थिंक that I was kind of very uncomfortable with that. I'm a pretty religious person myself. I just don't think कि एक दूसरे को ताने, जो है ना, मजहब का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को ताने दें एंड आई एग्री। या हम्म मैं नमाजें पढ़ता, आई मीन देर इज लाइक प्लेंटी ऑफ हदीस एंड लॉट ऑफ वार्निंग्स कि जो खाली दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इट मस्ट कम बिल्कुल फ्रॉम। बट बिल्कुल। एट द सेम टाइम, अगर आपका गुड बिहेवियर किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दिस इज योर चांस टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस, और उनके लिए भी अच्छा है। एंड आई हम्म थिंक showed दैट, बिकॉज जो दीपक परवानी का कैरेक्टर है, ही वांटेड टू, या कोई वो जबरदस्ती नहीं कर रहा था उनके साथ ना। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस दिस हाँ। आइडिया ऑन ऑन कॉन्वर्जेशंस जो हैं वो कैस के हवाले से बार बार आती हैं कि जी कैस जो है वो कितना रिग्रेसिव है और कैसा है, मगर मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि लुक एट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। या Not only meeting Lela halfway, he's going above and beyond. Now, it may not be enough for Lela, ऑफ but if कोर्स। he's able to meet her and if he keeps trying to, increase his ability to adapt to the situation, and I think we need to give credit to KS's character. क्योंकि मुझे लगता है कि एक टीचिंग मोमेंट मर्दों के लिए सरवत ने डाला है इस ड्रामे में, जो कि हम बार बार कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैस चोमू कैस चोमू। यार थोड़ा देखो, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब करता है वो माफी मांगता है, वो उसके लिए कुछ स्वीट जेस्चर्स करने की कोशिश करता है, वो उसको अप्रिशिएट करता है, वो उसके लिए स्टैंड अप लेता है। मैं ये नहीं कह रही कि कैस परफेक्ट है, और मैं आई एम ऑलवेज टीम लैला। आई एम ऑलवेज रेडी विद व्हाई आर वी टीम लैला? बिकॉज वो बदतमीज नहीं होती। हैव यू ना वो नोटिस बदतमीज है और वो ना ना जुबान पे कितना कंट्रोल है उस इतना लड़की कंट्रोल है, और वो जब टेम्पर लूज भी करती है ना तो वो फिर का। भी ऐसे बिला वजह टेम्पर लूज नहीं करती है चलती फिरती रैंडम बातों के ऊपर, वो कहीं हर जगह तो वो समझौता कर रही होती है। पढ़ी लेकिन जब वो लिखी लड़की का यही पढ़ी फर्क लिखी और तमीजदार गुड वैल्यूज वाली लड़की का ये एक फर्क है। होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कैस की बातें ना मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी जल्दी डिसमिस करना चाहिए, बिकॉज कैस देखिए, जो टेम्पलेट है या जो प्रोटोटाइप है ना हमारे यहाँ मर्द का, वो कैस जैसा ही है। कैस ही जैसे मर्द हैं, हम्म। ठीक है, जो कहते हैं मेरी अम्मी ने अगर ये कह दिया तो तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो, नहीं हम्म। जाओ ना ये कपड़े पहन के, अम्मी ने कह दिया तो मान लो ना, घर पे रुक जाओ ना, ये कर दो ना वो कर दो ना। आप ये सोचें कि अगर कैस की बातें लैला मानती रहती तो क्या जीशान पकड़ा जाता? अगर कैस की बातें लैला मानती रहती तो क्या उस घर में जो दरारें पड़ी हुई थी क्या वो किसी और तरीके से सर पे ना फटती? जरूर फटती। और मैं ये बात वही बात बार कहना चाहती हूँ कि हमारे ड्रामे जो है ना वो अच्छी उनकी बात ये है, जब अच्छा ड्रामा हम बनाते हैं तो हमारे यहाँ वो बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो जमा तकसीम की बेस्ट बात भी मुझे ये लगती है कि कैस का जो कैरेक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट जमा तकसीम से, कैस का कैरेक्टर मर्दों को ये सिखा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर ये वैल्यूज होंगे कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, मेरे मम्मी पापा आप ये कर सकते हो, इट्स ओके, वी नो दैट आपके अंदर से ये चीज नहीं जाएगी मम्मी पापा वाली। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बीवी को भी इज्जत और प्यार और मोहब्बत की वो तलबगार है, और आप उसका रुतबा नहीं छीन सकते उससे, और आपको उसकी इज्जत उसको देनी पड़ेगी, कीपिंग द बैलेंस। So the challenge is on him also, and lot of times he's good with the challenge, and lot of times he's like यार ये क्या किया तुमने। वो तो एक नॉर्मल चीज है, दैट्स गुड राइटिंग कि भाई बिल्कुल। मेजोरिटी टाइम वो है, लेकिन एक आध दफा तो उसने भंड मारनी है ना, राइट, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, राइट। अच्छा, मैं माय मेन थिंग इज दैट आई थिंक लैला हैज इंटर बिकॉज आई लव माउरा एंड हर एक्टिंग हियर। Too good, too good. Too good. And same with Cass and क्या उनका नाम है, तलहा, amazing acting and too sweet, right? अच्छा, and Amazing. these are these sweet guys that become monsters. मेरी अम्मी ने कहा था, right? और उस And बेचारे you, को तो रोल ये पकड़ा देते हैं हर दफा जाके, मम्मीज बॉय। who is this guy that I हाँ। married, right? It's always the sweet ones, na? हम्म Anyway, my main thing when we started reviewing this thing, and then we can wrap it up, is that I said it turns your life into a circus, joint family हम्म systems, जिसमें हम्म एक करीना होता है and you have to perform, right? And you said, what do you mean by this? And you can see it now. The difference between Laila
एंड दो दूसरी भाभियां इज दिस, लैला डजंट टेक पार्ट इन द गेम। कितनी हम्म। बार वो जो बाजी है उसकी सास ना वो ट्राई बेट की है करती हैं उन्होंने, उसको। तो उसको बेट करने की कोशिश की है, उसको मुंह पे उसके कैरेक्टर के ऊपर शक किया है, उसको पता नहीं क्या भला बुरा, ये आपकी नुजत बाजी कोई खड़ा होके कोई कहे तो मैं कैस की शक्ल देखूं कि नुजत जो फोड़ है, नुजत ये है, नुजत वो है, देन I'd सी इनका रिएक्शन। लेकिन वो लड़की इतनी अपनी ये पढ़ाई लिखाई होती है, हम्म। नॉट आई कैन तालीम और स्पीक, तरबियत दोनों उस बच्ची के और अंदर या बहुत अच्छी हैं, ये हाँ। तरबियत होती है, और लिबरल एजुकेशन का फायदा। और आप इसी उसको भी देखें, उसमें भी अच्छा कंपैरिजन उसने दिखाया। अगर हम ये पॉइंट बना रहे हैं कि लिबरल राइट, एजुकेशन या एक पढ़ी लिखी तमीजदार लड़की कितनी फायदेमंद होती है किसी खानदान राइट, को जन्नत बनाने के लिए, आप उस जाहिल लड़की को देखें, वो जो राजदा है, बेटी राइट, उसकी वहां हरास हुई हुई है, वहां कितनी टॉक्सिसिटी है। मुझे डर लग रहा है, मैं वहां जाऊंगी मैं भाई। कर जाऊंगी। मैं। और जो नुजत भाभी हैं उनको फौरन मौका मिला, अच्छा ये तो रेप्स हुई हैं दो तीन, तो हम्म। लेट मी, मेरे फायदे का क्या है, राइट। शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रन या मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन या एनीथिंग, मेरा क्या फायदा। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन गेम्स टू अचीव थिंग्स, Also, when वेयर you're a psychopath, you will always manipulate this, try to manipulate the worst situation in your favor. That's Yeah, what makes you a. this is my advice to all girls because I've been in situations like this when you Hmm. join a joint family, etc. Is don't be part of the game. वो आपको बेट कर रहे हैं, आप अपने standards of behavior आसमान पे हैं तो keep them on the highest level. तो मेंटेन बाउंड्रीज। yes, और हमारे लिए, अब लड़कियों के लिए बहुत आसान है, हम लड़कियां फौरन डोरमैट बनने को, हमें क्योंकि सोसाइटी भी यही बोल रही होती है, डोर कल्चर। मैट के अलावा ना, डोंट बी दिस थिंग, उन्होंने बदतमीजी की मैंने कर दी, राइट, हम्म। वो देन यू दिस इज व्हाट दे वांट कि आप उनके गेम का हिस्सा बनो एंड सम ऑफ द हम्म। comes on you, don't be part of the game, Yeah, and I also feel like the very simple thing to do in such a situation is that when they're baiting you, you want to say your piece, so just say your right, piece and leave. Get right. out of that. Don't stay, and वही बात है ना कि don't fight, wrestle with a pig because आप the pig जो है likes ना it. ये रेसलिंग मैच की नहले पे Don't देना wrestle with वहां a पे किया, pig राइट। because the everybody gets dirty and the pig likes it. So just don't do that. Anyway, coming to Pamal. Pamal, so your take. मेरा नहीं, आप बताएं क्योंकि मेरे ना हेडेक हो जाती है उसके बारे में सोचते ही ना, आई फोर्स माई सेल्फ टू वॉच इट। ओ माय गॉड। सो ड्रामा जो है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो मलिका का कैरेक्टर है वो सेंस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आई थिंक मलिका का कैरेक्टर वाज सपोज टू बी डन बाय समबडी मच यंगर देन सबा कमर, एंड इट वाज डन बाय, इट वाज, द कैरेक्टर वाज रिटन इन अ वेरी गलेबल सिली डम्ब जो लड़की वो बनी। 17-18 ईयर ओल्ड लड़की जो है ना, वुड लुक हाँ नॉर्मल, बिल्कुल। और वो कहानी अगर आप एक मिनट के लिए सबा कमर से हटा के वो फिर पुरानी वाली यमन खान पे डाल दें, मिनाल खान पे डाल दें, तो वो बिल्कुल सही बनेगी कहानी, आपको समझ आ जाएगी, एकदम से कहानी समझ लेकिन आ जाएगी। आपका फिर भी खुदकशी करने को दिल करेगा हाँ क्योंकि वो तो खैर है, वाई दिस, वो तो खैर है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो एक्टिंग है और जो प्लॉट ट्विस्ट हैं वो सब अच्छे हैं, ओवरऑल वेल मेड प्रोडक्ट है सारा कुछ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं पमाल के रिव्यूज पढ़ती हूँ, पमाल की कहानी पढ़ती हूँ, कहानी पे रिस्पॉन्सेस पढ़ती हूँ, कहानी तो नहीं पढ़ी, लेकिन ये कि उसमें जब लोग आके कहते हैं कि जी ये नाशुक्री है या ये ऐसी है या ये वैसी है, या इसको इस लड़की की इसका किरदार इतना ऐसा क्यों है, क्या गलत कर दिया रजा ने, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा रजा के बिहेवियर के अंदर, एंड यू आर लाइक वाओ, वाओ। आई हैव वर्कड आउट वाई उससे क्यों बार बार गलतियां होती हैं उस लड़की से। हम्म। Because I've realized when they, your husband or someone like that हम्म। is constantly critical, constantly doing it wrong, there is some kind of deep need. वो कहते हैं ना, जो लोग difficult situation में रहते हैं वो रात को देर तक उठ के तो कंप्यूटर टीवी प्रोग्राम देखते हैं, हम्म। and just because it's their hours of freedom. हम्म। So I feel that whenever she gets a chance, उससे हमेशा गलती होती है because she wants to be away from this severe control. It's हम्म। inhuman the way he's trying to control her. And हम्म। then you are bound to fail because he's not allowing you to grow. अगर आपने हम्म। अब्बा बनना है,
right? And some husbands are like that. हम्म There are, but then the same husbands, I've seen them that, अच्छा एक सिंपल लड़की से शादी हुई है, उनको इंग्लिश की क्लासेस के लिए भेज रहे हैं, उनको हम्म ड्राइविंग सिखा रहे हैं, उनको, I've seen that. If you want हाँ, उन्होंने that लड़कियों role, की do जिंदगियां that. बदल दी हैं, Yeah. उन्होंने लड़कियों की जिंदगियां बदल दी हैं फॉर द बेटर। Yes. हाँ तो ये Because they think, look, she's not on my level intellectual or whatever, but I need to bring her up so that हमारी जिंदगी आसान हो. देखिए पुराने जमाने में तो ये बहुत होता था ना, जो पुरानी जब 12 13 14 15 16 साल की लड़कियों की उम्र की शादियां हो जाती थी, तो वो तो लिटरली दे ग्रू अप विद देयर हम्म. स्पाउसेस, वो और उनके बड़ी उम्र के अगर हस्बैंड्स होते थे तो फिर वो तो मतलब वो हस्बैंड ही काइंड ऑफ एक बच्चा ही बड़ा कर रहे होते थे। तो पहले तो Right. होता था, ये आज से कोई 50 60 70 साल पहले। लेकिन अब की जो कहानी या आजकल की कहानियों में या आजकल की जो ऑडियंस है वो ये सवाल करती है कि यार क्या हो गया है, अगर उसने मोबाइल घर पे हम्म. छोड़ दिया है तो आप चिल करो यार, कोई मसला नहीं है। और फिर मैं आई गो बैक टू दैट कि सवा कमर का एज ब्रैकेट सही नहीं था इस रोल के लिए। तो एक तो ये मसला हो गया, चले हम उसको साइड पर रख देते हैं। मैं वापस बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ खवातीन, या जैसे हमने मेरी जिंदगी हेतु में बात की कि मेरी जिंदगी हेतु में हमने कहा कि हमने कैरेक्टर को, कामयार के कैरेक्टर को उस थ्रेशोल्ड पे ले गए जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया। हम्म. रजा का कैरेक्टर अगर उसको डांट देता कि यार तुम हर दफा मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ तुम फिर वही भंड मार के आ जाती हो, तुम्हें कब समझ में आएगी बात। लेकिन रजा का कैरेक्टर उस थ्रेशोल्ड पे जाता है जहां पे वहां से आप कहते हो कि ओके दिस इज अ प्रॉब्लम। गाड़ी इतनी तेज चला रहा है कि उसको अपनी प्रेग्नेंट बीवी की सेफ्टी की फिक्र नहीं है, उसको घर छोड़ के आ गया, वो रो रही है, धाड़े मार रही है, चीख रही है, और उसको फिर भी फिक्र नहीं है। उसको छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा उसको जलील करता है, उसको इस तरह की बातें कहता है कि आप कैसे उस इंसान को कह सकते हो कि नहीं यार सही डांट रहा है, कोई बात नहीं। डांटने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप इस तरह के ताने तुरशे दे के इस तरह की बातें करो कि ओ ये तो तुम कहाँ से आई थी, तुम क्या थी, और मैं तुम्हें गरीब घर से उठा के इसलिए लाया था, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर, they cross the line. So when the line is crossed, you stop looking at a character from a sympathetic POV. रिव्यूज जो मैं पढ़ रही थी वो मैं कह रही थी कि एक खातून ने लिखा कि भाई ये फेमिनिस्ट औरतें जरा मेरे रिव्यू से दूर रहें, ये लड़की बहुत स्टूपिड है, ऐसी लड़कियों के साथ यही इलाज होना चाहिए, वेल डन रजा। एंड आई वाज लाइक ओ वाओ, हैज दिस ड्रामा अच्छा, टेकन अस बैक अ फ्यू इस स्टेप्स। टाइप की औरतों को रजा जैसे मर्द से अगर जोड़ दिया जाए ना, तो फिर आप देखें क्या वहां पे हाय रिस्पॉन्स. दुहाई होगी सारा दिन कि हमारे साथ जुल्म हो गया है, हमें नहीं, भी उसका निकालो। सर तोड़ के तो निकल आएंगी. ये भी राइट. है। प्रॉब्लम इज दैट रजा को इट्स, मलिका बना देंगी वो। नहीं वो, हाँ नहीं, रजा एंड मालिका आर पीपल दैट यू फाइंड इन नेचर, राइट, अ हम्म लॉट इस टाइप के कपल्स. वो हम्म होती भोली बड़ लड़की. एंड व्हाट वन ऑफ द रीजंस दैट आई हैव अ फ्लिप व्यू ऑफ दिस, हम्म that I have seen perfectly capable, well educated women in charge of their lives looking at Malika and going, right, like this. And I'm like, your life is nothing like this. अगर आपको हम्म पता हो कि किस डिफिकल्टी से ये औरत गुजर रही है, because we love that Mazloom victim हाँ, एवरीबडी वांट्स टू बी द सॉफ्ट, हैव द position. सॉफ्ट स्टोरी, हाँ। And I'm saying, you know what? Wipe your tears with that Louis Vuitton bag, put it to one side, and tell me where you went on holiday and who you went with. हम्म And I know there will be people, oh, that doesn't count. Yes, it does, right? Because you have autonomy. I see people going on girls' trips, they're doing all kinds of, they're driving cars, they have their own business, and yet they're looking at Pamal and saying, "Hi, ye main thi." And I'm going, no, it wasn't. And you हम्म know what? When you do that kind of thinking, what you do is you take away from the people who are actually actually suffering. miserable, who are Yeah. actually miserable. Yeah, true. And I also feel like the absolving of characters like Raza, I don't know how that happened, because there is, I mean, at least to my eye, I do not see Raza as somebody who can be वो ना absolved. थोड़ा सी शक्ल वाला है वो, उसकी ना उस्मान मुख्तार की ना, हम्म आई मीन ही कांट हेल्प इट, इज एन एक्टर, राइट. हम्म वो और कई बार वो स्वीट हरकतें जब कर रहा होता है तो ऐसे लगता है नहीं बहुत अच्छा है. लेकिन आफ्टर वाइल यू सी क्वाइट क्लियरली कि ये तो दरोगा जेल है, ये शौहर हम्म नहीं है. मियाँ बीवी का रिश्ता इज वन ऑफ काइंडनेस, फॉरगिवनेस एंड ऑफ कवर. कंपैशन। लिबास है हम एक दूसरे के लिए यार, ये बट क्या सदब जिस जिस है? रिलेशनशिप में आपको अपने, और आपको, आप इतने अक्लमंद आदमी हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने मैन ऑफ द वर्ल्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रही उसकी पर्सनैलिटी क्या है, आप सीधा ही उसके ऊपर तोप दागे जाते हैं, जब आपका दिल चाहता है उसके सर पे एक डंडा मार देते हैं,
आपको हम्म, अगर इतने आप अकलमंद और इतने मैन ऑफ द वर्ल्ड और इतने ब्रिलियंट और इतने ब्राइट हैं, आपको नहीं पता कि उस बेचारी की पर्सनैलिटी कैसी है, वो एक टूटी फूटी सी, एक अजीब सी, सहमी सी, वैसी सी लड़की है जो डम्ब हरकतें करती है, तो उसको इतनी स्पेस दो ना, एट अलाउ हर टू बी दैट स्टूपिड एंड देन but हेल्प हर ग्रो आउट ऑफ इट। this is it, it's like जमा तकसीम आप देख रहे हैं, इट्स अ मैच फॉर दैट शो कि किसी की पर्सनैलिटी की ग्रोथ ही नहीं होने दे रहे। हम्म। एंड द सेम विद जमा तकसीम, वो दोनों जो भाभी हैं, निगहत को इजाजत है, शी कैन से एंड डू एनीथिंग क्योंकि वो अमीर घर से आई है। लेट अस पुट मटेरियलिज्म इन फ्रंट एंड ओ सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल राइट? बिल्कुल। क्योंकि वो निगहत का कैरेक्टर अमीर घर से है, वो थोड़ी सी हम्म। बैकिंग है उसकी, एटसेट्रा, तो वो सारी उसकी खुशामद। हाँ, सब सास सब गुना माफ, सात खून माफ, हाँ। नाश्ता नौकर है क्योंकि वो, हम्म। उसकी बैकिंग कोई नहीं है, मियाँ उसका हम्म। कुछ खास कमाता नहीं है, राइट? सो एंड एंड द सेम विद इन पमाल, मटेरियलिज्म अगेन, कि वो उसकी बैकिंग कोई नहीं है, बेचारी गरीब से घर के आई है, हम्म। एंड सो शी इज बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। वो जो बाजी है दूसरी वाली, उससे शादी होती तो अंकल को पता चल जाता क्या हाँ। होता है जिंदगी में ना। हम्म। And that's why he is saying she's too materialistic, but what he was actually saying, वो मेरी तरह है। That's what he was saying about the first रिश्ता ना। भाई, So ये सारा जो रजा का जो प्रोटोटाइप है जो हमने मर्दों में देखा है, कैस का प्रोटोटाइप है, एक रजा का प्रोटोटाइप है। रजा का प्रोटोटाइप जब मैं देखती हूँ, जब मैं उसकी वही बात करती हूँ, जब मैं रिस्पॉन्सेज पढ़ती हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है, ओह दैट्स व्हाई अब्यूज इज सो, लाइक नार्सिसिस्टिक अब्यूज और इमोशनल अब्यूज इज सो नॉर्मलाइज्ड इन आवर कल्चर। बिकॉज हमने समहाउ रजा जैसे मर्दों को गलत समझा ही नहीं। हमने कहा ही नहीं कि ये मर्द गलत होता है या इस तरह वो क्यों बिहेव कर रहा है। हमें तो वो लड़की में ही फॉल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि समहाउ और द अदर वी आर नॉट बाइंग it द is गर्ल्स मजलूमियत। it is not just men, and I keep saying this, right? And people will get annoyed with me because unfortunately I've seen cases. Guy with an MBA, right, comes to America. So you see them, they guess if someone, you see he's come out with the black eye from his room. बीवी मारती है लेकिन I can't leave her, दो बच्चे हैं। हाँ, And वो तो this is अलग how बात है ना सर, ये तो अलग नहीं नहीं, सिचुएशन है but ना। this is it. He didn't do what she said. हम्म। Right. So, what I'm saying is, any kind of individual that is forcing you into situations and constantly critical, constantly, like this, get away from them. You हम्म। cannot fix them. नहीं, वो तो आप मैं आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं कोई और बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं टुवर्ड्स पमाल, वो ऐसे ही हैं, हम्म जो इतने डिसअपॉइंटिंग है कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो रजा जैसे मर्द जो होते हैं, आप जिस हम्म तरह की कैटेगरी की बात करी, बिल्कुल वो नुजत वाली और निखत वाली औरतें हैं, वो सारी मैनिपुलेटिव हैं, वो एक नंबर की। लेकिन मैनिपुलेटिव जो भी है, अगर औरत मैनिपुलेटिव होती है या औरत अगर गड़बड़ करती है ना, तो उसको एक ब्रांड दे दिया जाता है, अरे ये लड़की, अरे ये ऐसी, अरे ये वैसी। मर्द हम्म, जो इस तरह का करता है ना, तो वो उसको समहाउ ये जस्टिफाई किया जाता है कि मर्द तो लड़की को सही प्रोटेक्शन ऐसे के लिए कर, नहीं नहीं, होते उसकी ही भलाई है। के लिए कर रहा है। इसमें भी अ, तुम्हारी बेटा कोई भलाई है, तुम समझ जाओ ना। तुम प्यार से समझाओ उसको, तुम पराठों से दिल जीत लो उसका। अरे भाई, अरे भाई, ये कहाँ मर्द बदलते हैं। खैर, तो गाइज लेट अस नो व्हाट यू थॉट ऑफ कमाल। सब आ जाते हैं जिनकी शादी उनकी शादी पे। देखा आपने, कैसा लगा आपको? I didn't get a chance to see all of it, but in between, and it was delicious. I ओए love होए। the way that they were bitching about, can I say those words? नादिया के बारे ना, वो आपस में चुगलियां दोनों लगा। हाँ, ओ भाई, कितना फिट 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 ड्रामा है। मैं कहती हूँ यार, खत्म ही ना, क्योंकि मैंने आई थिंक ट्वीट किया था कि एक दफा शुरू होना होता है पमाल, फिर वो बिरयानी बिरयानी भी हम्म, पता नहीं क्या हो रहा है बिरयानी में। फिर वो शरपस, खैर शरपसंद आई एंजॉय, बट बिरयानी और पमाल देखने से पहले मैं कहती हूँ अल्लाह मेरा, एक तो मुझे पसंद इतना है ड्रामा, जिनकी शादी उनकी शादी, तो जल्दी से पहले से पूरी देख लूं। फिर जब वो खत्म हो जाता है, मैं कहती हूँ अल्लाह, अब मुझे पमाल देखना है, अब मुझे वो देखना है, बिरयानी देखना है। अल्लाह, ये कब मैं फिर कभी कभी मैं दोबारा जाके जिनकी शादी उनकी शादी देख लेती हूँ। रिलैक्स। इतना पसंद है मुझे वो ड्रामा। आई लव द स्वीट रोमांस। एंड वहाज अली का एक सीन है इसमें, शीज वो नादिया अफगान का कैरेक्टर इज गोइंग ऑन एंड ही इज जस्ट लाइक ही इज गोइंग लाइक दिस। आई लव हिज एक्सप्रेशंस। और नादिया अफगान का कैरेक्टर कितना इवल है। प्रॉपर इवल, प्रॉपर इवल, और कोई उसकी इवल की इवलनेस तक अभी तक पहुंचा नहीं है जितनी इवल वो है।
जितनी वो खबीस उसका कैरेक्टर है उस पर कोई नहीं पहुंचा है अभी तक, एंड आई रियली वांट के कोई पहुंचे। ऑल्दो वो काफी हद तक उसकी भाई भाभी ने, असद ने और वो दूसरी ने उसको काफी हद तक पहुंचा तो दिया है घर तक, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ ये डिजर्व ज्यादा करती हैं, मुझे ज्यादा जरा इनकी सलाम अलैक होनी चाहिए। चाहिए थोड़ी सी ना, हाँ हाँ। थोड़ी और ठुकाई होनी चाहिए तो, बट बहुत अच्छा ड्रामा है गाइस, मतलब हम क्या ही रिव्यू करें, इट्स वन ऑफ दोज पिच परफेक्ट ड्रामा, मतलब कुछ है ही नहीं कहने को। बट देखो, जो नहीं देख रहा है वो देखे ड्रामा। एंड No, I love their performances. I mean, I'm just a little bit, वो थोड़ा सा घरेलू मसले मसाइल उन्होंने जान के डाले हैं हाँ, ना। रिलेटेबल बनाने के लिए, Yeah, रिलेटेबल बनाने के लिए। देखा। बहुत बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है। सर बिरयानी कैच किया आपने? बिरयानी आप देख रही हैं आई No, I थिंक? was unable to catch it because I was traveling, and अच्छा I अच्छा, जितनी जितनी शॉर्ट रिव्यू हम जिनकी शादी उनकी शादी का कर रहे हैं ना कि जी अच्छा ड्रामा है देख लें, बिरयानी में भी एक लाइन का रिव्यू मेरा तो यही होगा कि क्या है ये, क्या कर दिया उन्होंने, आप देखिएगा। चटनी बना दिया। हाँ, खिचड़ी, बिरयानी हैज बिकम प्रॉपर खिचड़ी, खिचड़ी चीज हो गई है वो, और वो खिचड़ी इतनी सैड खिचड़ी है कि आई एम लाइक यार यू कुड हैव डन सो, कुड हैव बीन अ कंटेंडर। Tell me what happened because I missed it. What is happening between Nisa and जो उनके fiance You haven't जबरदस्ती? missed anything. You haven't missed अच्छा, anything. It's वैसे the same. वैसे। It's the same. Everything is the same. Same हाँ, conversation, circular conversations. Miran is still a man child. I don't understand what Gulmeher scenes is. Nisa is still conflicted. The fiance is still weird. I mean, either maybe I've also like spaced out, blanked out. So please tell me if I'm wrong. पर मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। मैं तो वेट कर रही हूँ खत्म हो जाए। let us have the next couple of episodes and see what changes happen. Okay? जी। Then एंड we'll give up. जी फिर Okay, हम new आएंगे। dramas. Can we mention the new dramas that are coming Yes, along? yes, Madawa has come in. I think I kind of enjoyed Uh-huh. that. वही फ्लफ सा है मदावा। शरपसंद इज ऑलरेडी गुड, अगर आप शरपसंद नहीं देख रहे तो देखें, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है शरपसंद। आई थिंक इट्स रियली सच अ स्मार्ट शो। आई वांट शाउट आउट टू अफान वहीद, बिकॉज सदफ इस ड्रामे में उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं कि उनकी जो वाइफ है हरीम फारूक जो प्ले कर रही हैं, वो दोनों मियां बीवी के फर्टिलिटी इश्यूज हैं, बट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल फर्टिलिटी इशू। एंड वो Mhm. अपनी बीवी को कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, और वो बीवी कहती है कि आई यू क्रेजी, आई कांट लीव यू एंड दिस एंड दैट, एंड ही इज एडमेंट दैट प्लीज लीव, आई डोंट वांट यू टू बी विद मी तो बिकॉज आई एम रूइनिंग योर क्या लाइफ। दुनिया ना आपको कन्विंस कर देती है कि यू आर नाउ पीस ऑफ ट्रैश, या राइट? या या क्योंकि यू कुडंट परफॉर्म वन फंक्शन, या तुम बीमार क्यों हुए, तुम्हें, एंड दिस इज इन ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअली, कि आप किसी को अबैंडन कर दो इस चीज। बिल्कुल। और अफान वहीद इसमें इतनी हार्ट ब्रेकिंग सीन है वो हाँ। यार, वो इतनी अच्छी एक्टिंग उनकी है उसके अंदर। वो इतना मतलब एक ऐसी सिचुएशन है, अब बाकी यू योर हार्ट गोज आउट टू द कैरेक्टर्स, इवन हरीम, एंड दैट एंटायर सीन इज वेरी अच्छा। शरपसंद मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अ लॉट ऑफ स्टोरीज दैट हैपन इन देयर ओन स्पेस, एंड देन समटाइम्स दे कनेक्ट। व्हाट आई लव अबाउट शरपसंद इज दैट यूजुअली ऐसी स्टोरीज वर्क नहीं करती। यूजुअली ऐसी स्टोरीज जो होती हैं वो डिसजॉइंटेड मालूम होती हैं, या उनका उनके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बन पाती। इस कहानी की अच्छी बात यह है कि हर कहानी अपनी जगह पे आपको खींचती है, और फिर आप उस कहानी में पूरी ड्रामे में ऑन द होल इन्वेस्टेड भी होते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है शरपसंद की, तो आई रियली वांट गिव क्रेडिट टू द राइटर एंड द टीम ऑफ शरपसंद। न्यू ड्रामो में और कौन से ड्रामे हैं? लेट्स सी, नीली कोठी के वो रिलीज नीली हुए। कोठी के टीजर्स, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दोज? Well, I think one of our friends, Mona, was it Afia? They were saying this reminds me of a little of the plot of क्या उसका नाम है, धूप किनारे, right? हम्म। And I was thinking, but I think this is a completely different vibe. And I thought Talha and Anmol, they looked, वो नहीं है, चमकते हुए चेहरे, रूप हम्म। सुहाना, दोनों हम्म। इतने हसीन लग रहे थे। तो मैं सोचू स्टोरी की क्या जरूरत है, हम इनके चेहरे ही देखते रहते हैं। But I have a feeling this time Anmol has worked a little bit on her dialogue delivery, क्योंकि हम्म। थोड़ा सा मैंने उनमें देखा है, डायलॉग जो उनके होते हैं ना, लठ मारती हैं थोड़ा सा कभी या कभी, हाँ हाँ, या नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी उनकी इसमें डिलीवरी भी, मुझे वो या प्यारी बहुत लग रही है।
एक ओह, तो वो वो इतनी तो है खूब, ही हसीन। वो है ही हसीन नहीं, लेकिन देखे ना मतलब हसीन लोग भी कभी कभी उतने अच्छे आपको नहीं लगते जितने कभी कभी अच्छे लगते हैं। तो ये जो वो कभी कभी में वो जो मुझे इतना उसका ड्रेस, उसके बाल, वो बारिश, हालांकि बड़े स्टेरियोटिपिकल सिचुएशंस है, राइट। लेकिन वो बारिश और वो बाल और वो आंखों में एक दूसरे का देखना, और फिर यूं भागना और उसका तलहा का अम्ब्रेला को फेंक देना, हाय 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 हाय, सच ए ब्यूटीफुल रोमांस। और मुझे अच्छी बात ये लगी है इस टीजर की कि हमारे यहाँ क्या होता है, कभी कभी ड्रामों में ना इस तरह के टीजर आते हैं और फिर आप कहते हो अच्छा ये कब होगा ड्रामे में। लेकिन इस ड्रामे में एक, जब उन्होंने टीजर के बाद की आगे की थोड़ी सी जो कहानी खोली है उसमें मुझे लगा कि अच्छा ये सिंबॉलिक है। तो मेरे लिए एक्सेप्ट करना आसान हो गया कि देखो ये जरूरी नहीं है कि ये सीन होगा, मगर ये है सिंबॉलिक और हमने ये चीज अब आगे जाके इस कहानी को ऐसे डेवलप होते हुए देखना है। सो आई थिंक द टीजर्स रियली वेल पुट टुगेदर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू तलहा चहूर। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट रोल पे वो आए हैं, and I think that they share very good chemistry with each other. So yeah, Yeah, definitely that fantastic. scene, amazing. Yeah, Also, Saima Akram Chaudhary is coming back after a big break. big So I break. think, See, 2 years. yeah, so yeah, I mean, it's a pretty good one. Chand नहीं तो Tara was the last one, no, with Danish yeah, and उनका Aiza. लगातार आ रहे थे ना, काला डोरिया, चांद तारा, चोरी चोरी, चुपके चुपके, चुपके सॉरी, चुपके, हम तुम, and it was had become a production line. And then I think she deliberately, to her credit, she's an intelligent woman, she took a break and then hmm, came to it in full hmm, force, right? hmm. नहीं तो वो फॉर्मूला बनने का बड़ा डर था। नहीं नहीं, So मुझे बड़ा अच्छा लगा टीजर, आई रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे बड़ा मुझे लगता है कि हम टीवी ऐसे ड्रामे बनाता है हमेशा जो हम्म, आपको कुछ ना कुछ एक हेल्दी पैकेज में चीज देते हैं और आपके family view, फैमिली व्यूइंग होती है, और कहीं ना कहीं क्या उनके ड्रामों में सब्सटेंस होता है। हम हम्म, टीवी के ड्रामों में सब्सटेंस होता है, जो बहुत दफा कोशिश करते हैं दूसरे चैनल्स बनाने की, लेकिन वो भी बनाते हैं कभी कभी, वो भी बहुत अच्छे ड्रामे बनाते हैं, बड़ा मजा आता है उनको देखने में। लाइक शरपसंद इज अ ग्रेट शो। हम्म। आपके कुछ जो जियो पे जो बिछड़ गए हमने देखा तो वो बहुत अच्छा था, तो प्लीज जियो वाले कुछ आप लोग भी बना लो जो बिछड़ गए Why, ज्यादा why दोबारा। do we have to go back 3 4 years to आई find a नो, आई good नो, show? It's आई नो। sad क्योंकि एक्चुअली जो परफॉर्मेंस अहमद अली अकबर दे रहे हैं, वो क्या उसका नाम है, सावल यार पिया में, इट इज लाइक दैट, जस्ट हिज परफॉर्मेंस इज वर्थ वॉचिंग दैट शो फॉर। रियली, इतना अच्छा आई उन्होंने, कांट वॉच दैट शो। ओके। नहीं नहीं नहीं, I understand why and I हम्म, respect that, but it's not fair on him because he has done such a good job. I mean, that हम्म। entire show is him, and इतनी restraint और refinement से acting. I mean, a BAFTA is yours, or an Oscar. हम अपना अवार्ड बना लेते हैं, सदफ एंड मावशज Yeah. अप्रिसिएशन अवार्ड्स, क्या होगा वो? सदफ एंड मावशज Now let's not अप्रिसिएशन, go there. Let's think of a name सदफ, instead. इट विल बी सांपा, इट विल बी अ सांपा, सदफ एंड मावशज, सामा, Now, a golden rose to you right हाँ now. गोल्डन, हाँ चल सही है, गोल्डन रोज हो गया हमारा। तो जो है वो आई थिंक दैट अहमद अली अकबर बहुत अच्छे अदाकार हैं और ही डिजर्व्स बेटर स्क्रिप्ट्स Yeah, एंड ही डिजर्व्स बेटर स्टोरीज। उनको प्लीज अच्छी स्टोरी कोई दो। आई थिंक कुछ कर रहे हैं वो, मैंने सुना तो है कि वो कोई अच्छी सी चीज बना रहे हैं। लेट्स good. सी। गाइस लेट अस नो कि आप लोग क्या देख रहे हैं। मैं Let's बाहर see, नगर भी there's देख रही हूँ। another one. There's another, I think, another one coming with Sabah Kamar on Hum TV. I ओह saw a clip for it. यस, मुअम्मा, मुअम्मा। ये क्या है? अब हम्म, आप उर्दू के एक्सपर्ट हैं, मुझे आप बताएं। What मुअम्मा is, इज मिस्ट्री। अच्छा, मुअम्मा ओके, मीन्स मिस्ट्री, मतलब एक पजल, ये मुअम्मा हल करने वाला है, या वो क्या कर रिडल, रहा है, ये एक मुअम्मा है मेरे लिए। हाँ, रिडल। रिडल, मुअम्मा, पजल, हम्म, कंफ्यूजन, मिस्ट्री, सिमिलर, सिनोनिम है, सिनोनिमस है क्योंकि सब एक दूसरे। आई रिफ्यूज टू वॉच। अगर सबा कमर फिर से कोई विक्टिम बनती हैं, हाय या बस, हाय का सबा रोल प्लीज बड़ी हो बस, गई है नहीं साढ़े ना। बस सबा, कुछ लाइट, कुछ मजे का, कोई एम्पावरिंग, कोई वैसा रोल करो, कोई मजेदार रोल करो भाई, हम भी। ब्रिलियंट एक्ट्रेस ऑनेस्टली, और फिर जाया की जाती हैं। जाया की जा रही है, नहीं Not इनकी fair. अपनी चॉइस भी है ना सदफ, देखिए हम इसमें ये नहीं कह सकते आपकी, जैसे मैं कहती हूँ कि सबा, सज्जल, ये हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं इनकी चॉइसेस क्लियर हैं, वो क्या चूज करें, तो हमें उनको बोलना पड़ेगा कि यार ये चॉइस ऑफ थी है। लाइक सज्जल शुड नॉट हैव डन मंटो, लाइक आई लव सज्जल, शी शुड नॉट हैव डन मंटो। आई लव सज्जल, शी शुड नॉट हैव डन दिलवाली गली में ऑल्सो। तो ये है ना, बस अब सजा, आई डोंट थिंक सबा शुड हैव डन केस नंबर 9, आई थिंक दुरे फिशा शुड हैव डन केस नंबर 9। I agree. You know what? I thought Sabah, actually putting aside all this, she looks absolutely gorgeous in ओ Panga. शी Oh, इज हसीन। beautiful.
Right? हसीन। And I am jealous of all his hairstyles and clothes. And I was like, हम्म। whoever it is, मैं बता let's. रही हूँ, सबा के लिए ना कैरेक्टर क्राफ्ट करना चाहिए किसी राइटर को, किसी चैनल को बैठ Yes. के मुझे, और ये मुझे लगता है हर बड़े एक्टर के लिए होना चाहिए। जब बड़े आपका इतना बड़ा एक्टर हो जाए तो, क्योंकि हमारे यहाँ वो ऑडिशंस वाले सीन तो होते नहीं है कि भाई एक ड्रामा लिखा जाएगा या फिल्म लिखी जाएगी, उसके लिए देखा जाएगा कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। और बहुत दफा ना कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कहानी लिखते हैं सोच के कि इसके लिए तो मैंने ये सोचा हुआ है, इसके लिए तो मैंने ये सोचा हुआ है। जैसे अब मेरा अगर कभी मैं कुछ लिखना चाहूँ सभा के लिए, तो मैं सभा को सोच के लिखूंगी कि यार ये सभा कमर करेगी तो क्या ही करेगी, कमाल कर देगी ये। तो Hmm. वो उनको चाहिए कि वो किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ बैठ के, A comedy, like या, Neeli Katti, शी इज सो yes, फनी, something like शी that, इज right? सो फनी, लाइक शी हैज सच जरूरी ग्रेट नहीं कॉमेडिक टाइमिंग। जरूरी नहीं कि हर कॉमेडी जो है ना 2 16 साल के बच्चों के लिए लिखी ना, जाए. You can have people in their 30s, they also have lives. बिल्कुल। एंड आई थिंक हर कॉमेडी बच्चों वाली स्टूपिड लेवल की होती भी नहीं है। जैसे सुनो चंदा वाली वो स्लैपस्टिक वाली कॉमेडी भी होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी कॉमेडी, जैसे मैं जिनकी शादी उनकी शादी को कहती हूँ कि जिनकी शादी उनकी शादी बहुत ही कमाल की, उसके अंदर वो जो कॉमेडी और वो जो उसके वन लाइनर्स हैं सलान वाले, मुझे नहीं पता उसमें उसमें खुद, क्योंकि वो खुद भी एक कॉमेडियन है तो उसने खुद कितने डाले हैं, लेकिन जैसे उसमें वहाज के डायलॉग्स हैं, या तुम बिल्ली 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 बन के सो जाओ, बिल्लियां तो कहीं भी सो जाती हैं। इट्स सो फनी। अच्छा, और फिर वो जो कहता है ना कि नहीं मैं तो यकीन है, और फिर वो जिस तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स है ना कि वो कहती है कि अल्लाह करे हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं, तो अरसलान गोज लाइक अमीन, यू नो। अच्छा, द थिंग इज उनकी शक्लें हैं तो हम यकीन भी कर लेते हैं, कोई और ये डायलॉग बोले, ये हम्म। कहते हुए हम के ये राइट. बट हम्म। वो वहाज और सहर की शक्लें ऐसी हैं कि आप कहते हैं ये ओके. ये शक्ल और एक्टिंग दोनों ना सर, शक्ल शक्ल अच्छी हो और एक्टिंग का डायलॉग आप वटा फेंक के मार रहे हो तो क्या फायदा है। शक्ल That's अच्छी it. हो, एक्टिंग अच्छी हो। Their expressions, हाँ। right? Believable expressions. I'm not talking about looks per se, na. नहीं बिल्कुल, आई थिंक सबा कमर जो है उनको वो डिजर्व करती हैं बेटर, बेटर देन पमाल, शी डिजर्व बेटर देन केस नंबर 9। अब लेट्स सी व्हाट दिस मोम्मा इज। आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट इट, आई न्यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट, मैंने सुना है कि इसमें बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट और बहुत मजे का रोल है, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मैंने सुना तो यही है। और ऐसे लोगों से कहते तो सभी हैं अपनी कहानी के बारे में, लेकिन जिनसे सुना है वो रिलायबल है काफी, जब वो कहते हैं इंटरेस्टिंग है तो फिर इंटरेस्टिंग है। तो आई एम रियली। Did you catch, and this is the last thing we can do, is दिल मिल गई या ख्वाबों में मिली, ख्वाबों में मिली. Oh yes, I'm watching it. And I it am. was like, I'm surprised it's so good. I didn't expect it to I be good. I I won't go that far. It's not very I good. think it's good. No, I I think mean, it's a guilty pleasure. I give it a pass because look, हम लोग इतने ड्रामे देखते हैं, we are a Mm, little jaded, right? yeah, yeah. बार बार वही expressions, and yet this managed to catch me, and I liked it. I आयना को थोड़ी सी एक्टिंग थोड़ी सी और थोड़ी अपनी सी improve. सिखा दें, थोड़ी सी और सिखा दें Yeah, उनको। हाँ, हाँ, she's हाँ, too हाँ। beautiful. I think she's So pretty. Oof. अनमोल बलोच की तरह मुझे लगती हैं. वो नहीं है लुक्स 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 एंड लुक्स, राइट? तो वी नीड टू इम्प्रूव द एक्टिंग. बट आई थिंक दैट मुझे सिर्फ एक गिला है कि हम्म। अदनान, उसका नाम है अदनान रजा मीर, रजा मीर, हाँ। इतनी उर्दू से नफरत ना करें. हाँ। इतनी आशिर उर्दू वजाहत को थोड़ी सी शेव याद करवा दें। सकते. आशिर हम्म. वजाहत की शेव करवा दें, शाह आलम का वो कैरेक्टर प्ले करें, उसकी शेव करवा दें प्लीज, उसकी स्टबल उसके ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अदनान और आयना दोनों को थोड़ी सी एक्टिंग वर्कशॉप थोड़ी और करवा राइट. दें, मेरे ख्याल से देर नॉट रेडी yet। और मुझे लगता है कि वो एक और भी उसके अंदर बच्ची अभी आएगी, या वो नहीं आई है, जो मेरी तन्हाई में थी वो नहीं आई है अभी तक, यस मेरे ख्याल यस से यस. वो आई आएगी। कांट, तमीमा, हमीमा, समथिंग लाइक दिस समथिंग, उसका. तो वो उनका उनको भी वो अच्छी एक्ट्रेस ने देखते हैं, वो क्या कहती है, मुझे जो मजा आ रहा है ना ड्रामे में और कुछ डायलॉग इतने ऑफ हैं उसमें कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये चला जाऊंगा, मैं आ जाऊँ लाइक यार, अब मुझे पता चल गया है कि ये अगेन जल्दी जल्दी में लिखे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी में किया जा रहा है, बट स्टिल ओवरऑल इंगेजिंग है ओवरऑल, क्योंकि पेस अच्छी है और यंग बच्चे हैं, नए फेसेस हैं। आपको वजाहत रऊफ का वो पीछे दिख भी रहा है, आशिर वजह जहाँ शूट कर रहे हैं, वो वन मैन शो जो करते थे वो पूरा बैकग्राउंड में दिख रहा है, तो जो दो इफ यू नो वाला सीन है उसके अंदर, जिनको पता है वो पता है, वो चीज विल नो। तो ये है। of a Gen Z thing, and I'm glad हाँ। that they're doing this with हम्म। younger actors. Obviously, वो ये उनकी learning curve है, थोड़ा सा सीखेंगे, कुछ करेंगे तो सीखेंगे ना. नहीं, लेकिन ठीक. मुझे लगता है कि इट्स टाइम
फॉर जेन जी एक्टर्स ऑल्सो टू कम एंड शो देयर चॉप्स अ बिट मोर, मतलब राइट। हम लोग कब तक आप लोग इंस्टा टिकटॉक पे रीलें बनाते रहोगे, आके एक्टिंग करो। अच्छा पता है मैं आपको बताऊं सदा, बहुत अच्छे एक्टर्स बैठे हैं। और मैंने हम्म। ये भी देखा है कि देखिए उनमें से कितने कम ट्रांजिशन कर रहे हैं, टीवी ड्रामों में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहे, लेकिन नीतू बेबीज तमकिनत उनको हैं। मौका ही नहीं देते ना नहीं नहीं दे। ऐसा नहीं है सदर, मौके की बात नहीं है, तमकिनत जो है या अरसलान नसीर और ये लोग सब, इन्होंने ये मेहनत कर रहे हैं। ड्रामा में काम करना बहुत थकाने वाला काम है, पैसे ज्यादा नहीं होते, ख्वारी बहुत होती है। ये जितने भी हम एक्टर्स देख रहे हैं ना, मैं टू बी आई मीन, आप लोग बोलोगे यार ये फिर आ गई दिफा देने, जितने भी ड्रामा के हमारे एक्टर्स हैं, चाहे वो समी खान हो, चाहे वो अरसलान नसीर हो, चाहे वो बहाज हो, चाहे वो सज्जल हो, सबा हो, कोई भी हो, वो बहुत मेहनत करके ड्रामा बनाते हैं, यस। बहुत मेहनत है। फिल्म में मेहनत नहीं है बाय द वे, जो फिल्म स्टार्स है ना उनको ग्लोरी ज्यादा मिलती है, लेकिन फिल्म स्टार्स जो है ना वो मेहनत नहीं करते उतनी जितनी ड्रामे वाली मेहनत करते हैं। और ये बात हुमायूं ने भी कही थी, आई थिंक अपने इंटरव्यू में भी कही थी कहीं कि जितनी मेहनत ड्रामे की लगती है उसमें आपको बहुत शूट करना पड़ता है, बहुत दिनों शूट करना पड़ता है, और लंबे लंबे शूट होते हैं, एक दिन कितने कितने दिन शूट होता है। तो आप, ज़ाहिर ही इज यूज्ड टू शूटिंग मूवीज, राइट? ड्रामे में किरदार की गहराइयां तक पहुंच जाते हैं हमारे राइटर्स। यार और राइट। कितनी लंबी देखे ना, एक एपिसोड होती है 35 मिनट की, 35-40 मिनट की एपिसोड होती है। तो आपने बनाई है कोई, अगर आपने शूट भी 25 एपिसोड शूट किए हैं, तो आप समझ लीजिए आपने 12 फिल्में शूट की हैं। चले 12 नहीं तो कम से कम 6 फिल्में तो शूट की हैं। जितने में वो 6 फिल्म, 2 फिल्में शूट करता है साल में कोई एक इंसान, और आपने 6 फिल्में 6 महीने में शूट की हैं, अब आप सोचिए। तो ये जो इसलिए टिकटॉकर्स और ये जेंजी वाले बच्चे जिनको आदत ही नहीं है मेहनत करने की, जो वो वाले बच्चे हैं, खैर मैं ये नहीं कहती सारे जेंजी बच्चे ऐसे होते हैं, पर बहुत सारे जेंजी बच्चों को आदत नहीं है मेहनत करने की। उनका जी हमने रील बना ली, हमें 1 मिलियन व्यूज वहां से आ गए, हमें क्या जरूरत है ड्रामे में पूरा दिन ख्वार होने की, बातें सुनने की, डायरेक्टर की भी बातें सुनो, कपड़े भी ऐसे पहनो, फिर डायलॉग ऐसे उर्दू दो। सीख लो। बाकी सबकी हाय सब बातें हाय क्या उर्दू का ड्रामा है, उर्दू दुखती सीख रग ले। पे हाथ रख दिया आपने मेरी सदफ, हाय 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 हाय, उफ तौबा खैर। बट एनीवे आई रियली अप्रिशिएट ऑल द जेंजी किड्स हु आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट प्लीज थोड़ा, स्पेशली अदनान रजा मीर, आप थोड़ा सा यार, थोड़ी तो हिम्मत करो इतनी यार। अल्लाह ने आपको एडवांटेजेस दी हैं। बहुत यू एडवांटेज है यार, देखिए तीसरा आर ड्रामा है इसका। You are speaking directly to the, you are being cast ahead of other people जिनको ज्यादा शायद टैलेंट हो, जिनके पास सब, but they don't have your approach। वो जो हम्म पाकिस्तान में एक अप्रोच होती है ना, हम्म right? So if you are getting that, right, respect your craft, दिस इज respect हिज other फोर्थ actors। ड्रामा ना? Yeah। फेरी और टेल वन वैसे का टू, कैसा है? जुड़वा, Yeah। दिस वन, एंड आई थिंक ही डिड वन मोर बीच में, एक Yeah। और भी कोई था इसका, पता नहीं। एनीवे 4-5 तो कर लिए बेटा तुमने, अब तुम अब Respect your craft। आहत तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया था इतने टाइम पे, नॉट टू Yeah। कंपेयर द टू, Ahad is बट a very natural actor। आहत तो Right। पहले से ही, पहले ड्रामे से ही वो बहुत तेज था, आहत तो सम्मी में भी बहुत तेज था, बट आई थिंक कि अगर अदनान मेहनत करे तो ये भी कुछ कर सकता है, लेकिन कर ले भाई प्लीज, अब कुछ कर ले, कुछ कर ले प्लीज। एनीवे थैंक यू सो मच सदफ, इज देयर एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड? No, well, been on vacation, so now I'm back. I'm back. Sadaf Well, is back. Sadaf is back. Like the Terminator is back. जो मैंने कहा था ना, हम कहते हैं ना, we will be back. So we are back, guys, and we will be back with more reviews next week, इंशाल्लाह। आप लोग अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपना बहुत ख्याल ख्याल रखेंगे, सदफ को फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। खुदाफिज। that is